Talking for me was a sex comedy, but even Censor Board said कि इसमें कुछ काटने लायक नहीं है. It's you है. You made the point without making it vulgar. So you can do anything without making it vulgar. I don't think there's any concept which is untouchable. So as far as your treatment is concerned, if that is good, if you don't have any dirt in your mind, and you're just making a movie and nothing else around it, then I think it's fine. You can make, like, even this topic for many people is controversial. जैसे अभी पूछा मैम ने कि आपको डर नहीं लगता, but अगर आप एस्थेटिकली करेंगे तो इवन पिछली बार पाकिस्तान में पायरेसी में बहुत चली है फिल्म यार, तेरे बिन लादेन बहुत पसंद. वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये दिमाग खराब हो गया हमारे कॉम का, इसको क्यों बैन कर दिया. So if it is done from a clean heart, and if you are talking about a certain concept with a treatment which is aesthetically not challenged, then you can make anything. I'm fine with it. Fantastic. हो गया जागरण जी? Thank you जी. बस जी, thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, now can the photographers please come forward to take photos? Can we please hear it for everybody who's थी पहले फ्राइडे को और फिर एकदम से जगी थी, इसलिए उसको स्लीपर हिट बोले. सो रही थी वो पहले. फ्राइडे सैटरडे कोई नहीं गया. उसके बाद आप गए थे. I saw the movie in the theater and I loved it. Now ये वाली जो है, इसमें सबसे पहले ये बताओ कि आपकी पहली वाली में तो ओसामा मतलब गायब, अब तो रियल लाइफ में भी ओसामा गायब है, तो ये कौन है? See, I like it that आपने बोला गायब है, मरा नहीं है, because that's the whole premise, right? That we don't know कि ओसामा जिंदा है कि मर गया. अमेरिका कहता है कि वो मर गया, लेकिन we have not seen a proof till now. So that's what the film is all about, dead or alive. So we are again raising this question after 2011, after the supposed killing of Osama. So we are now again asking कि भाई अगर मर गया तो उसका proof क्या है? So that's what the film's basic premise is. And इसका idea भी जो है, I must say, because यहाँ इतनी मीडिया बैठी है, that इसका idea भी मीडिया नहीं दिया इस फिल्म का. Basically ये जो फिल्म बनी है, ये मीडिया की वजह से बनी है. ऐसे कैसे? So तेरे बिन लादेन जैसा आपने बोला स्लीपर हिट थी. उसके बाद कयास लग रहे थे कि हम उसका सीक्वल बना रहे हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था सीक्वल बनाए. पूजा आरती नहीं सोचा था हम सीक्वल बना रहे. We were not making any sequel. In fact, I don't like the concept of sequels. So ऐसा कोई thought नहीं था. And then suddenly ओसामा मर गया. ओसामा मर गया. गायब हो गया सर, गायब हो गया. नहीं, गायब हो गया जो भी है, मतलब अमेरिका के हिसाब से वो मर गया. So एक मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बॉम्बे टाइम्स के बैक पेज पे एक आर्टिकल किया था कि बिन लादेन इज डेड, सो इज द सीक्वल. सो वो अपने आप ही उन्होंने सीक्वल शुरू करी थी और अपने आप ही मार दी. सो उससे मुझे आइडिया आया कि देन आई गॉट द आइडिया दैट ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, देन आई गॉट द आइडिया, देन आई टोल्ड पूजा कि ये मेरा आइडिया है. तू पहले सो रहा था जब वो जिंदा था, अब वो मर गया तो को सीक्वल बनानी है. सो नहीं बट दिस इज द आइडिया. So yeah, sleeper director, sleeper hit ka sleeper director. So then I thought of the idea. Then we started writing, and that's why where we are today after 4 years, and we are very, very excited. In fact, I just want to clarify that it's not a sequel. This is the first time in India that we are making a spin-off. Alright. Okay, it's not a conventional sequel. It's not a part 2. That's why we're not calling it a part 2. We are calling it Tere Bin Laden Dead or Alive. Picture जब आप देखेंगे उसके 20 मिनट शुरू के जो हैं, that is a surprise package for you because this is a new structure that we are trying. And then you'll understand why it is a spin-off and not a sequel per se. And it's a very interesting structure. Usually people think that innovations happen only in art house cinema, but here we have tried to do that in mainstream comedy. It's an innovative structure with, along with my writers, Pradyuman, who is also an actor in this film, and Neha. So we have written a structure of the screenplay which is very unique and new in terms of sequels. Fantastic. So yeah, बाकी आप देखिए. मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं पूछूंगी क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने भाई मीडिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए छोड़ देते हैं. सो वेल, लेट्स कॉल अपॉन स्टेज योर लीडिंग एक्टर ऑफ द फिल्म. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू हियर इट फॉर मनीष पॉल? हाय मनीष. हाय. मेरे मुंह से माइक पकड़ते ही वैसी झलक दिखला जा निकल जाता है यार, लेकिन आज नहीं होगा. और जनरली आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही बात निकल रही है, प्लीज वॉच माय फिल्म तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव 19th Feb. Thank you so much for calling me. Thank you. Now Manish, how excited are you for this film? You're very excited because obviously हर इंसान फिल्म करना चाहता है और आज इतनी बड़ी फिल्म में मुझे हिस्सा होने का मौका दिया सर ने. एंड आई रिमेंबर ये फिल्म एक्चुअली जब मैं सर को पहली बार मिला था वो किसी और फिल्म के लिए था, उसमें एक छोटा सा रोल था, बट सर ने मिलके मुझे कहा, कहते हैं यार तुम एक काम करो, तुम मेरी जो दूसरी मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ उसमें एज अ लीड एक्टर काम करो. सो मुझे बड़ी खुशी हुई थी. वो वाली फिल्म अभी तक सो रही है जो पहले प्लान कर रहे थे. वो स्लीपिंग ही रह गई. वो स्लीपिंग है, बट ये फाइनली वी आर रेडी विद द फिल्म एंड आई एम डैम श्योर कि लोगों को पसंद आए. अभी फिलहाल तो इन सबको हम दिखाना चाहेंगे ट्रेलर एंड आई होप सबको अच्छी लगी. फैंटास्टिक. इससे पहले ट्रेलर दिखाया जाए, मेरे को आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए. पिछली मूवी में जो
किरदार था उसका सपना था कि बस मैं अमेरिका पहुंच जाऊं किसी भी तरह, आप इसमें चांदनी चौक के एक लड़के का रोल कर रहे हैं, उसका क्या सपना है? यार एक्चुअली मैं इसमें एक दिल्ली से चांदनी चौक का एक लड़का है जो जिसका एक ही सपना है, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। और उसका फादर जो है सर ये बता सकता हूँ, हाँ उसका फादर जो है वो जलेबियाँ बनाता है और उसका एक ही पंगा है, कहता है मैं कुछ भी करूँगा, मैं जलेबियाँ नहीं तलूँगा, मैं डायरेक्टर बनूँगा। तो किस तरह वो स्ट्रगल करके मुंबई पहुंचता है और फिल्म के लिए स्टार्ट करता है, किस तरह फिल्म बनाता है और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी फिल्म में आप देखेंगे किस तरह जुड़ती हैं। सो फिलहाल वही कैरेक्टर है और मज़े की बात यह है वो कैरेक्टर है मिस्टर शर्मा, यानी जिन्होंने पार्ट 1 बनाई है। मेरे पिताजी जलेबियां नहीं बनाते। हाँ क्लैरिफाई करो। सो ये कैरेक्टर है फिल्म में। फैंटास्टिक। इससे पहले कि हम आपकी बाकी की कास्ट से मिले, आई थिंक ट्रेलर देखने का समय हो गया है ना? Absolutely. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हियर फॉर तेरे बिन लादेन, डेड और अलाइव? काट रहा है। Manish, can I request you to come back on stage, please? Manish Paul, everyone. Okay, sir, अभी हम आपकी बाकी की कास्ट से मुलाकात कर लेते हैं because हमने सबकी looks तो देख ली हैं और क्या-क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो भी देख लिया है. Now, there's one person who's completely, absolutely unrecognizable. And he's unbelievable. Unbelievable. Playing David and David Chadda. Can I have up on stage Mr. Sikandar Khan? Ladies and gentlemen, round. Come on. हेलो गुड आफ्टरनून। सिकंदर, आपका ये ज्यादा मजेदार क्या था आपके लिए? डेविड वो अमरीकी वाला डेविड या डेविड चड्डा प्ले करना? नहीं, दोनों मजेदार थे बिकॉज मतलब प्लेइंग अ वाइट गाय वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट डेविड चड्डा वाज मोर ऑफ द फिल्म। और अंदर वैसे भी मेरे रगों में पंजाब का खून जा ही रहा है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी मजा आया, बट बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी लॉट्स ऑफ फन टू प्ले। तो ये अमरीकी डेविड एकदम से डेविड चड्डा कैसे बन जाता है? ये अभी बता सकते हैं? थोड़ा बहुत डायरेक्टर साहब, लिटिल थोड़ा बता सकते हैं? थोड़ा तो थोड़ा बहुत तो CIA के हेड हैं डेविड डू समथिंग, और सीक्रेट मिशन पे आते हैं हिंदुस्तान डिस्गाइज होके पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर बनके, तो ही इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी वजह से, उस मिशन की वजह से, और ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ। ये गुड गाय है या बैड गाय है फिल्म में? He is the bad guy. He is the bad guy. मुझे पता नहीं चलता, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आ कोई रही नहीं, ये वाले में बोल दो। हेलो। No, so basically, I'll tell you, जो analogy है इस फिल्म की, जो इंस्पिरेशन था लिखते समय हमारे लिए, वो था गुड बैड एंड अगली। सो बेसिकली मयूष कह रहा हूँ मैं, सॉरी मनीष। थैंक गॉड आपने मुझे अगली पे नहीं आया, मेरे को तो लगा मयूष थैंक यू सो मच। मयूष पॉल एवरीबॉडी। everybody. मयूष पाल। मनीष पाल। मयूष पाल से मुलाकात हुई। आप देख रहे हो ना हम कितने पागल हैं, और ये बस 3 लोग हैं यहाँ। So Manish represents the good. Sikku is the bad. He's the absolute bad in the film. And पीयूष भाई का जो कैरेक्टर है, जो डायमेंशन वो ला रहे हो, that's the ugly. तो पीयूष सर से पूछ लेते हैं फिर उसके बारे में क्या हाँ, कहते वो हैं? पूछते हैं। और दूसरा पॉट ऑफ गोल्ड जो है वो प्रद्युमन है, which is the ओसामा। जो तीनों जो हैं वो ओसामा के पीछे भाग रहे हैं। Well, तो ये बेसिकली एनालॉजी है। अब आपने नाम ले ही लिया है तो पीयूष मिश्रा जी, प्लीज कैन वी हैव अप ऑन स्टेज प्लीज? पीयूष सर। आइए पीयूष जी। माइक। है ठीक है हो जाएगा। पीयूष जी, आप अभिषेक के साथ उनकी हर फिल्म में जुड़े रहे हैं। आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया उसको। तेरे बिन लादेन 1 से लेकर अभी तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव तक, आप अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे बतौर निर्देशक? क्या कहूँ बोल? अच्छा बोल दो। बुरा तो सेट पे बोल लेते। अभी इन्होंने आपको अगली बुलाया, अब बोलिए। नहीं ठीक है, चलेगा बंदा, चलेगा बंदा चलेगा, मतलब कोई टेंशन नहीं। इसका 3 फिल्में कर चुका हूँ मैं, और अब मालूम नहीं क्या मतलब अगली फिल्म में इसका इरादा है कि नहीं मुझे लेने का, लेकिन हाँ ठीक है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो चुका हूँ इसके स्टाइल से। इसके इंस्ट्रक्शन अब ज़्यादा, मतलब पहले जो अनुराग कश्यप के साथ हाल था कि ज़्यादा इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आँख के इशारे से काम चल जाता है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें जो आपका रोल है, आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेता बने हैं, लीडर बने हैं इस फिल्म में। खलीली ना? खलीली। हाँ। तो खलीली बहुत टाइम हो गया बनाए हुए तो। खलीली तो सर खलीली के बारे में सर आप क्या बता सकते हैं पीयूष जी? हाँ, ये ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने सबसे नॉन डिस्क्लोजर साइन करा, तो सारे एक्टर मुझसे पूछे, अब बता दूं? ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बता सकते हैं? ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो उसामा बिन लादेन के मरने के बाद बिल्कुल खोखली हो चुकी है, क्योंकि उनको जो भी फंड्स वगैरह मिलते हैं ना, फंड्स मिलते नहीं है इनको, तो जो बारूद बनाते हैं ये आपके बम फेंकते हैं, वो आपके फुलझड़ी बन के निकल आता है, तो वो बहुत परेशान है कि आपके इनका कोई टेरर मतलब आपके है ही नहीं, मतलब कहीं भी आपके इनका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ रहा।
तो उस स्ट्रगल से जूझ रहा है ये बंदा कि कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा लाइव किया जाए। तो उसमें जो है कुछ होता है, वो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो ये किरदार करने में कितना मजा है सर आपको? ये थोड़ा पागल सा किरदार है एकदम, मतलब बहुत ही ज्यादा। सब किरदार करने में मुझे मजा आता है। नॉर्मल, मेरे लिए हर चीज़ नॉर्मल थी। मेरे लिए कुछ भी दे दो तो मैं उसे बहुत ही नॉर्मली कैजुअली जैसे कि हर कैरेक्टर लेता हूँ, ऐसे मैंने इसको भी लिया। बाकी इसमें आपके डिलाइट ऑफ द फिल्म इज रियल। अरे बाबा क्या किया मयूष एंड हाँ, ये लोग, ये पहली फिल्म है इसकी। ये दूसरे को बैठा हुआ है वहाँ पर चुपचाप, वो साला आपके इसका हीरो एक्चुअली बिन लादेन। अरे हाँ, वो शर्मा के बैठा हुआ है अभी तक। हाँ, उसको बुलाइए। Ladies and gentlemen, पीयूष मिश्रा, can we have a huge round of applause for पीयूष जी प्लीज? और अब स्टेज पे बुलाते हैं हमारे पॉट ऑफ गोल्ड को, ओसामा बिन लादेन प्रद्युमन। ओसामा, I shouldn't be chanting that. सर आपको ओसामा, रियल लाइफ में आप कभी दाढ़ी वाड़ी उगा के कभी पकड़े गए सड़क पे, मतलब किसी ने देख के नहीं भग लिए लोग? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना ओसामा की तरह पकड़ा गया हूँ, ना एक्टर की तरह पकड़ा गया हूँ। तो ना मुझे एज अ प्रद्युमन कोई पहचानता है और ना ओसामा कोई पहचानता है। बताना पड़ता है ऑडिशन में, जब मैं ये खड़ा होता हूँ स्लेट लेके, तो बताना पड़ता है जी मैं वही लड़का हूँ जिसने तेरे बिन लादेन में ओसामा। एक दाढ़ी रख ले, लेके जाएगा अगली बार, वही लगा लिया गया। लेकिन सलमान ने बिग बॉस पे जिनका नाम लिया था पद्दी, ये वो पद्दी है भाई और बहनों। पद्दी जी जी hilarious. Before Why? Thank you. It works that way. It's so cute. Before Abhishek came into your life, कभी किसी ने आपको बोला था कि आपकी शक्ल? सेकंड, थोड़ा गलत साउंड करता है थोड़ा। हाँ, he came into his life. Before Abhishek became your friend We and your haven't come out of the closet. Yeah. That's still in there. और अभिषेक came I can only imagine what making this movie must have been like with this entire set of people. जी। किसी ने आपको कहा था पहले कि यार तेरी शक्ल तो ओसामा से बड़ी मिलती है? नहीं, माँ हमेशा कहती थी हीरो की तरह मिलती है किसी को। अब वो ओसामा किसी के लिए हीरो हो भी सकता है, था भी, तो गलत नहीं थी वो कहीं पे। बट आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान जब अपनी शक्ल चेहरे पे देखता है, कोई ये नहीं कहता होगा यार मैं तो चार्ल्स शोबराज जैसा लगता हूँ या मैं ओसामा लग रहा हूँ, या बम फोड़ते हुए कैसा लगूंगा मैं। आई मीन एवरीबडी इज जस्ट कोई कहता है जॉनी डेप जैसा लगता हूँ क्या मैं नहीं, मतलब नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है। नहीं, मेरे बारे में नहीं, बट जैसे कोई अपना चेहरा देखता है तो उसको लगता होगा कि मैं शाहरुख जैसा लगता हूँ या सलमान जैसा। ओसामा तो डेफिनेटली नहीं। पर हाँ, मेरे को बचपन में लोग देवानंद का अगली रूप कहते थे, मतलब अगली वर्जन ऑफ देवानंद। बचपन में कहते थे, अभी भी कहते हैं। अब तो बचपन में देवानंद अब एक्चुअली 80 में हम दोनों, जब वो 85 के थे और मैं जब 21 का था, तो सिमिलर से लगते थे। पिछली मूवी का ओसामा इस मूवी के ओसामा से कितना फर्क है? लुक वाइज तो बिल्कुल फर्क नहीं है, बट कैरेक्टर वाइज जमीन आसमान का फर्क है। मैं दरअसल प्ले कर रहा हूँ पद्दी सिंह, जो दरअसल फोक सिंगर है पंजाब का, और वो बम्बई आया है और 1.5-2 महीने से स्ट्रगल कर रहा था, और उसके बुरे हाल हो गए हैं, फटे हाल हो गए हैं। वो गाना वाना गाता है, लोग उसको भिखारी समझने लग गए हैं। तो वहाँ उसको मिस्टर शर्मा का किरदार मिलता है, और शर्मा कहता है बेटा तू स्टार तो बनेगा, लेकिन अपनी आवाज़ से नहीं, अपने चेहरे से। और उसके बाद वो पद्दी सिंह को बनाता है नूरा ऑफ तेरे बिन लादेन। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक प्रीमाइस जो मेरा किरदार है। तो आई एम प्लेइंग पद्दी सिंह, द गाय हु प्लेड नूरा इन द फिल्म तेरे बिन लादेन। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पिक्चर में उतना नहीं नहीं। या रियली कहीं आप सोच रहे हो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए अभिषेक जी, इससे पहले कि हम Q&A के लिए ओपन करें मंच को, आप कुछ फाइनली कुछ कहना चाहते हैं हमारे जो ऑल द मीडिया पीपल हो हियर? Nothing, I think the trailer spoke for itself. I think काफ़ी चीज़ें clear हैं, फिर भी जो भी सवाल होंगे हम जवाब देंगे। उससे पहले, but before we go for Q&A, I just wanted to invite Pooja and Aarti, the producers. And I've started my journey with them, and not just as a filmmaker, but I think in this industry. Also, I just want to say, because it's an emotional day for me, I came to Bombay today, 19 January. So it's a great day for me. And I joined Ad Labs. The same day, मतलब मैं आया, मैंने स्ट्रगल ही नहीं की, ट्रेन से उतरा, एड लैब्स कहाँ है, और जाके बिकॉज मैंने सुना था कि मिस्टर शेट्टी सबको जॉब देते हैं, तो मैं चला गया था वहाँ पे, मैं भी बैग लेके अपना, एंड ही वाज वेरी काइंड टू मी, एंड सो नाउ इट्स बीन 12 years in this journey and with them. I know Pooja Aarti now for 12 years now, and we made our first film together, and in this film they also have a cameo, so that you will see.